Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and healthy at your homes. I'm your social studies teacher from Sarse Children's Academy. So students, today our lecture number 5 and our topic is how to solve worksheet. तो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी आप वर्कशीट किस तरह से सॉल्व करोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने सबसे पहले जो हैंड आउट का काम है वो सारा अपनी कॉपीज़ में कर लेना है। होप आप सबने वो काम सारा कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ में। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो काइंडली वो सारा काम अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप एक टाइटल बनाओगे रिवीजन वर्कशीट। सारा काम करने के बाद हैंड आउट का सारा काम करने के बाद आप कॉपी में अपना टाइटल बनाओगे रिवीजन वर्कशीट और उसके बाद आप ये सारा वर्कशीट का काम करोगे और ये वर्कशीट आप सॉल्व करोगे। सो स्टूडेंट्स, जिन क्वेश्चंस के आगे इन कॉपी लिखा है आप वो कॉपी में सॉल्व करोगे और जिनके आगे नहीं लिखा है आप वो वर्कशीट में ही सॉल्व करोगे। सो हियर इज़ आवर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए विच इज़ fill in the blanks. Dash 632-34 became the first caliph. Hazrat Abu Bakr. The Umayyad dynasty began in dash 662. The completion of the Quran completing done during the caliphate of dash Hazrat Usman. Qutbuddin Aibak set up the dash Delhi Sultanate. The Umayyad rule ended when the dash came to power in 747. Abbasis. Traditionally, dash is the accepted dress for women in Pakistan. Shalwar kameez. Dash and rice have been grown and consumed in the Indus Valley. Wheat. The spread of dash in the subcontinent continued over the next years. Islam. Hazrat Abu Bakr became the first dash caliph. Iran is the famous throughout the world for its magnificent Persian dash carpets. ये सारी fill in the blanks जो हैं आप वर्कशीट में ही सॉल्व करेंगे। So yeah students, here is our question number 1 part B. Correct the answers. The official language of Pakistan is, आपने सर्कल करना है। ओके स्टूडेंट्स, पंजाबी, उर्दू, सिंधी। ट्रेडिशनल फूड इन कोस्टल एरियाज इज फिश, बिरयानी, निहारी। हो जमालो इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस इन खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। Pakistan came into existence because of religion, population, climate. The Muslim population of Pakistan is 50%, 90%, 97%. Question number 1 part C. True or false? True or false बताने हैं। Just like people, countries also depend upon one another. True. Pakistan shares only a small border with Afghanistan. False. Many battles were fought between Muslims and Christians over the control of Jerusalem. True. The multicultural society has many other disadvantages. False. The first European visitor to the subcontinent were Portuguese traders. True. Question number 2 is students complete this timeline by writing the correct dates. Dash the Pakistan resolution at Lahore 23rd March 1940. Dash Pakistan emerged as an independent country 14 August 1947. Dash War of Independence 1857. Dash the All India Muslim League is organized 1930. Dash India becomes independent 14 August 1947. Question number 3 है write the following fact file on Quaid-e-Azam in copy. Name, title, date of birth, place of birth, date of death, place of death. आपने ये एक फैक्ट फाइल बनानी है Quaid-e-Azam की और इसमें आपने लिखना है, उनका नेम लिखना है, उनका टाइटल जो उनको दिया गया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ और प्लेस ऑफ डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको आपकी बुक में सब जगह मिल जाएगा। आपकी बुक में आपका चैप्टर है उसमें मिल जाएगा ये आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि उनके नेशनल डेज़, उनके फेस्टिवल्स, उनकी स्पेशल डिशेज़, उनकी फेमस लैंडमार्क, प्रेसिडेंट नेम, प्राइम मिनिस्टर नेम, ये सब आपने कॉपी में करना है। पाकिस्तान का भी लिखना है और अफ़गानिस्तान का भी लिखना है। पहले पाकिस्तान की हेडिंग डालेंगे, उसका लिख लेंगे, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान की हेडिंग डालेंगे, फिर उसका लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द फर्स्ट 4 कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। जो भी हमारे फर्स्ट 4 कैलिफ्स हैं उनके नेम लिखने हैं आपने कॉपी में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ इन कॉपी। इनकी आपने फुल फॉर्म लिखनी है OIC, CPEC, CE। इनकी फुल फॉर्म जो है OIC की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, CPEC की है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CE की है कॉमन एरा। So now students, question number 7 when these festivals are celebrated write the dates। ये आपने कॉपी में करना है।
ईद उल फितर हम कब सेलिब्रेट करते हैं और उसकी डेट लिखनी है। रेजोल्यूशन डे, नौरोज़, ईद उल अज़हा एंड पाकिस्तान डे, ये आपने कॉपी में करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, रिकगनाइज द फ्लैग्स एंड नेम द कंट्रीज़। ये आपको कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं, इनके कंट्रीज़ के नेम बताने हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया। सो here is our question number 9, मैच कॉलम ए विद बी। कॉलम ए और बी दिया हुआ है, आपने इसकी मैचिंग करनी है। आपने इसको इसी तरह कॉपी में उतारना है और आपने इसको मैच करना है। स्टूडेंट्स, ये कुछ एयर्स दिए हुए हैं और कुछ ये इवेंट्स दिए हुए हैं। इन एयर्स में जो जो इवेंट्स हुए हैं आपने उन एयर्स को मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट फूड, लैंग्वेज एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस द फॉलोइंग प्रोविंसेस। कॉपी में करना है। ये 4 प्रोविंसेस दिए हुए हैं आपको, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, केपी के। इनकी फूड लिखने हैं कि इनमें फूड क्या खाया जाता है, लैंग्वेज लिखनी है और इनकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस लिखनी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए, राइट द ग्लॉसरी ऑफ द फॉलोइंग। ग्लॉसरी लिखनी है, डिमाइस, माइग्रेशन, एम्परर, डायनेस्टी, रीजन, सब कॉन्टिनेंट। ये ग्लॉसरी आपको आपकी कॉपी में भी मिल जाएगी, उसके अलावा आपको जो हैंड आउट दिए हैं उसमें भी आपको ये ग्लॉसरी मिल जाएगी। So here is students, here is our question number 11 part B, write the definitions of the following in copy. कुजीन, डिस्ट्रक्शन, इंटरडिपेंडेंस, फेस्टिवल्स, मेजॉरिटी, रिलीजन। या आपकी डेफिनेशन जो है आपकी कॉपी में भी मौजूद है और आपके हैंड आउट्स में भी मौजूद हैं। ये आप अपनी कॉपी में करोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं। या आपने हु इज़ नोन एज अ कायद आज़म, व्हाट डज इट मीन, हु आर द फर्स्ट यूरोपियन विजिटर्स टू द सब कॉन्टिनेंट, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ कैलिफेट टू दमस्कस, हु मूव द कैपिटल ऑफ कैलिफेट फ्रॉम मदीना टू कूफा, the completion of the Holy Quran was completed in which caliphate, which mountain range forms the border between China and Pakistan, what are the common characteristics of Pakistani culture, what is the total area of Pakistan, which country shares the longest border with Pakistan, during which country did parts of the Sindh and Punjab came under the Muslim influence। इन सब के आंसर्स आपकी कॉपी और आपके हैंड आउट में मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बता दूं, पहले आपने हैंड आउट का सारा काम करना है, उसके बाद आपने ये वर्कशीट का टाइटल बनाएंगे, रिवीजन वर्कशीट, और फिर वर्कशीट में जिन क्वेश्चंस के आगे इन कॉपी लिखा है वो आप कॉपी में करेंगे और बाकी जो है वर्कशीट में ही सॉल्व करेंगे और वर्कशीट को पेस्ट कर देंगे अपनी कॉपी में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फाइनल टर्म कंप्लीट हो गया है। आपके चैप्टर्स थे पाकिस्तान एंड हर नेबर्स, आवर कल्चर, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और या एंड में आपकी रिवीजन वर्कशीट। यहाँ पे आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है। आपने पेपर की तैयारी इन चैप्टर्स से अपनी कॉपी